الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ انسان جب اس کو کامیابی کی جب سیڑھی جب ملتی ہے، یاد رکھو یہاں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ کامیابی کی سیڑھی حاصل کرنے کے لیے کچھ تو کھونا پڑے گا، کچھ تو محنت کرنا پڑے گا، اپنے وقت کو ٹائم دینا پڑے گا، تبھی تو جنت کی سیڑھی ملے گی۔ جنت کی سیڑھی پانے کے لیے آپ اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا، آپ اپنی زندگی کو راہ خدا میں دین مصطفیٰ میں لگانا پڑے گا۔ جب آپ دین مصطفیٰ میں، دین خدا میں، قرآن مقدس میں اگر وقت جب آپ نکالیں گے تو آپ کی زندگی بدلے گی، ایسے ویسے نہیں بدلے گی زندگی۔ آئے دنیا میں کھیل تماشا کی طرح زندگی گزارے اور جنت میں چلے جائیں گے، یہ خیال مت لاؤ من میں۔ جنت میں جانے کے لیے اپنی زندگی کو آپ کو بدلنا پڑے گا، آپ اپنی زندگی کو راہ خدا میں، دین مصطفیٰ میں ڈالنا پڑے گا۔ جب آپ ڈالو گے زندگی کو راہ خدا میں، دین مصطفیٰ میں، تو آپ کی زندگی بہتر بنے گی۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں فرماتا ہے قد افلح، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ یاد رکھو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ کون سا شخص، کون سا مومن بھائی، وہ کون سا انسان ہے جو اس شخص کامیاب ہو گیا جو اللہ پاک فرماتا ہے؟ وہی تو نیک بندہ ہوگا، اللہ پاک کا نیک بندہ وہ ہوگا نا، وہ بھی تو اللہ پاک کا نیک بندہ ہوگا جو اللہ پاک فرماتا ہے وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ آؤ دوسری طرف میں لے کے چلوں، لوگ کیا خیال کرتے، کیا سوچتے، آؤ اللہ کی بارگاہ میں لے کے چلوں، آؤ دین مصطفیٰ میں لے کے چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل بتاؤ جہنم کی عذابوں کا ذکر بتاؤ، جو جہنمی ہوگی، جو جہنم ہوگا اس کو جو عذاب میں ڈالا جائے گا جہنم کی آگ میں، اس کے لیے کیا حکم بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے حضور سب سے ہلکی عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، سب سے ہلکی عذاب کی کیفیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ یخفف العذاب، سب سے ہلکی عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ آپ اس جہنمی کو جہنم کی آگ میں کھڑا کیا جائے گا، اور اس جہنم کی آگ میں جب کھڑا کیا جائے گا اس جہنم کی آگ پہ جوتا پہنایا جائے گا، اس جوتے میں اتنی گرمی ہوگی، اتنی حدت شرارت ہوگی کہ ناک سے، کان سے، زبان سے، آنکھ سے، پورے بدن کے ہر حصے سے پگھل کر پانی قطرہ قطرہ نکلے گا، جسم کی تمام گوشت گل کر زمین پر آ جائیں گے۔ آؤ دیکھو جہنم کے عذابوں کا دیکھو ذکر، حضور سے باتیں ہو رہی ہے جبرائیل علیہ السلام سے، جو جہنمی لوگ ہیں۔ میرے دوست جہنم کے دوزخ سے بچو، آؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے جسم کو پاک کرو، اپنے جسم کو صفائی کرو، اپنے من کو صفائی کرو، آؤ اللہ کی بارگاہ میں میرے نوجوان توبہ کرو، آؤ اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلب ہو جائے گا۔ حضور کی بارگاہ میں سب سے ہلکی عذاب کی کیفیت بتاتے ہیں، سب سے ہلکی عذاب کی کیفیت، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم لا یموت فیہا،
इससे भी बड़ी आग में डाला जाए। सुम्मा ला यमूतु फीहा, उससे भी बड़ी आग में डाला जाएगा, लेकिन उस आग में मौत नहीं होगी। लोग सोचते हैं, ख्याल करते हैं यहां मौत होगी तो वहां भी मौत होगी, वहां भी इंतकाल हो जाएंगे, लेकिन ऐसी मौत वहां याद रखो। अल्लाह पाक को मतलब तुम ला यमूतु, इससे भी बड़ी आग में डाला जाएगा लेकिन मौत नहीं होगी। वला यहया, कहा जिएगा, वहां जीने का भी होगा। वला यहया, न जियोगे न मरोगे, न जीने का सांस न मरने का सांस, आपको वहां सुकून नहीं है। पीछे से आग, आगे से आग, ऊपर से आग, नीचे से आग, चारों तरफ से आग ही आग, फिर भी मौत नहीं होगी, याद रखो। फिर भी मौत नहीं होगी, याद रखो। ये कुरान मुकद्दस का वादा है। आप जब कामयाबी की सीढ़ी जब आपको मिलेगी तो जन्नत में जाने की आसान हो जाएगी। अब रब करीम अब दूसरी तरफ क्या फरमाता, अब अफलह, वो शख्स कामयाब हो गया जो तौबा किया, जो अपने आप को सफाई किया दुनियावी बातों से, मतलबी लोगों से, गुनाहों से, चुगलखोरी से, गीबत से, बुराई से, चोरी से बाज आ गए, सब कुछ छोड़कर अल्लाह पाक की तरफ आ गए, दीन मुस्तफा की तरफ आ गए, राह खुदा में आ गए, गम खुदा में आ गए, चारों तरफ आ गए छोड़ने के बाद, चारों तरफ छोड़ने के बाद दीन मुस्तफा, राह खुदा, गम खुदा की तरफ आ गए, तो अल्लाह पाक फरमाता अब अपना वो सबसे कामयाब हुआ। इंसान जब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह के बारगाह में आए तभी तो अल्लाह पाक उसका सारे गुनाह माफ कर देंगे, वो कामयाब हो गए। मन तज़क्का, अपने बातिन को सफाई किया, मन तज़क्का, अपने मन को सफाई किया, अपने दिलों को सफाई किया, अपने जिस्म को सफाई किया, वज़कर अस्मा, और अपने रब का वजीफा पढ़ा, अपने रब को याद किया, अपने रब की तस्बीह पढ़ी, अपने रब की तस्बीह पढ़ी, फसल्ला, और नमाज पढ़ा। ये कामयाबी का रास्ता रब बता रहा है, ये कामयाबी की सीढ़ी रब बता रहा है, कामयाबी की तरफ। लेकिन दिन भर में 5 मरतबा अजान होता है मस्जिदों में, हैया अलैहि सलाह, नमाज की तरफ, हैया अलैहि फलाह, कामयाबी की तरफ। कुरान भी फरमाता है, अजान भी फरमाता है, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन इंसान वो नहीं आना चाहता, सिर्फ बुराई की तरफ, चुगलखोरी की तरफ, गुनाहों की तरफ, लेकिन मुस्तफा की तरफ नहीं, अल्लाह की तरफ नहीं, सिर्फ गुनाहों की तरफ। आओ कामयाबी की सीढ़ी की तरफ। अल्लाह पाक फरमाता है फसल्ला, और नमाज पढ़ा, ये कामयाबी का रास्ता रब बता रहा है। लेकिन लोग दुनियावी के मतलब में पड़े हुए हैं, इधर मकान, इधर शोहरत, इधर इज्जत, देखा वहां भी जा रहे हैं, वहां भी जाते हैं, वहां भी जाते हैं, चारों तरफ इज्जत ही इज्जत। याद रखो अल्लाह पाक इज्जत देने वाला और जिल्लत देने वाला रब के हाथ में है, इज्जत और जिल्लत रब के हाथ में। अल्लाह पाक फरमाता है तुम लालच मत करना न तुम जलील हो जाओ, और जो कुछ अल्लाह पाक ने आपको दिया उसमें सब्र कर लो, इसमें इज्जत है। बहुत लोग हैं 100 में 90 के लोग लालच करते हैं, वो जलील हो जाते हैं, याद रखो जलील। जो इंसान लालच नहीं करता है वो तो अल्लाह पाक उसको इज्जत दे देता है। ये कामयाबी के सीढ़ी की तरफ आओ, कामयाबी के सीढ़ी की तरफ। दूसरी तरफ कुरान मुकद्दस में फरमाता वल तुसिरून हयात दुनिया, तुम दुनिया के पीछे तरजीह देते हो। क्या है दुनिया? मीठी ख्वाब की तरह दुनिया है। वल आखिरतु खैर व अबका, इस दुनिया से बेहतर वो दुनिया है आखिरत की दुनिया। आपकी उम्र यहाँ कितनी होगी? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, यही उम्र होगी ना। लेकिन दुनियावी के मुताबिक एक दिन का रखा जाए तो यौम हसर की जिंदगी 50-100,000 साल की जिंदगी। कितना? 50-100,000 साल की जिंदगी। अब 60 साल को पाने के लिए इतनी लंबी जिंदगी को ठोकर मार दी, लेकिन वहां मौत नहीं है, यहाँ मौत है। याद रखो जन्नत की जिंदगी
यौम हसर की जिंदगी 50,000 साल की जिंदगी। रब आपसे इतनी मोहब्बत करता है, वो कोई नहीं करेगा। रब आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, कोई नहीं करेगा। कितने बड़ा, बहुत बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, बहुत बड़ा आपने जुल्म किया हो, तो भी अल्लाह पाक माफ कर देता है। याद रखो, अल्लाह की तरफ आओ, कामयाबी की सीढ़ी की तरफ आओ, तो आपके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। आपसे बेहद मोहब्बत करता अल्लाह पाक। जब आप कुरान मुकद्दस को जब सीने से लगाओगे तो आपके दिलों को सुकून मिलेगा। जब मस्जिद में आकर मस्जिद की दीवारों को लिपट कर एक आंसू का कतरा निकालोगे तो वही एक आंसू का कतरा जहन्नम के अज़ाबों पर भारी पड़ेगा। अगर आप हर कदम कदम मस्जिद की तरफ चलोगे तो हर कदम कदम के नीचे नेकियां लिख जाएगी, नेकियां लिख जाती है, और अल्लाह पाक का वादा है कि आपके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह पाक का वादा है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा शान है, कर्म करने वाला है। आओगे यहाँ तो गुनाह माफ हो जाएगा, लेकिन नहीं, लोग बुराई की सीढ़ी की तरफ है, नेकी की सीढ़ी की तरफ नहीं है, जन्नत की सीढ़ी की तरफ नहीं है, कामयाबी की सीढ़ी की तरफ नहीं है, वो जहन्नम की सीढ़ी की तरफ, जहन्नम की सीढ़ी की तरफ। और एक जुमला, दो जुमला कि जन्नत में जाने के लिए अपने वालिद और वालिदैन के कदमों को चूमो। ये सबका हाथ चूमते हो बेशरम, लेकिन वालिद और वालिदैन के पैर को, हाथों को नहीं चूमते हो, शर्म आती है। इन्हें पता कि घर के वालिद और वालिदैन हमारे पीर है, वही मेरा पीर है। अगर हाथ उठा दिया जाए तो आखिरत दुनिया हर चीज से माला माल। माँ की दुआ में ये असर है, हाथ को चूमो और दुआ लो, रसूलुल्लाह का नाम लो और फैज पाओ। अल्लाह पाक की बारगाह में जाओ, दीवारों को लिपट कर आंसू निकालो, जन्नत में जगह मिल जाएगी। एक कतरा आंसू भी निकला कि जहन्नम के अज़ाबों पर भारी पड़ेंगे। आओ, रब की बारगाह में आओ तो सही। दूसरे के सामने रोते हो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में रोने की कोशिश करो। अल्लाह की बारगाह में आकर सीने से लगाकर कुरान मुकद्दस को सटाकर सीने को लगाकर और मस्जिद की दीवारों को लिपट कर रब को याद करो, रसूलुल्लाह को याद करो। जब याद करोगे तो आखिरत की जिंदगी आपकी बेहतर बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है हम सभी को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए।